Good morning, students of class 4. Today we will start a new chapter, chapter 11, Snow and Chocolates. Actually, this is a letter to a friend from a pen friend describing about his native place. To know more about this chapter, let's read and find how a pen friend describing his native place. Let's read. Ajay lives in Jaisalmer. He has a pen friend named Gabriel who lives in Basel, Switzerland. Though they have never met, they often write to each other. Read this letter from Gabriel. अजय जैसलमेर का रहने वाला है और उसका एक पेन फ्रेंड है गैब्रियल जो स्विट्ज़रलैंड बैसल में रहता है। वे लोग कभी आपस में नहीं मिले, लेकिन एक दूसरे के साथ उनकी दोस्ती बनी हुई है और वे आपस में लेटर का आदान प्रदान, चिट्ठी का आदान प्रदान करते हैं। गैब्रियल के द्वारा लिखा गया एक लेटर ये आपके सामने है। सेंट एल्बन रेनविग 152 4032 बेसल 5 April 2020। Dear Ajay, how have you been? I am sorry I couldn't reply earlier to your letter, the one in which you wanted to know more about my country. I was busy playing in National Junior Tennis Championship. You see, tennis is a popular sport in my country, Switzerland. So are soccer and ice hockey. I am very lucky. I was born in Switzerland, one of the most beautiful country in the world. People from all over the world visit our country to see its snow-capped mountain ranges, blue lakes, green pastures, and tall trees covering the mountain slopes. Switzerland lies in the heart of Europe. Among our neighboring countries are Germany, Austria, Italy, and France. We are known as the Swiss people. Our official languages are German, Italian, French, and Romance. Bern is our capital. More than half of Switzerland is covered by the mountains known as the Alps. There is another mountain range called the Jura mountain. Not many people live on the mountain slopes because of so much ice and snow. Instead, most people live in the plateau region that lies between the two mountain ranges. Since Switzerland has so many mountains, several tunnels and bridges have been made to help people travel within the country. The Gotthard Base Tunnel is the world's longest railway tunnel. You must have seen picture postcards of Switzerland. Most of them show the Alps. These mountains are covered with ice and snow throughout the year. Switzerland is famous for its winter sports. People from all over the world come to ski and skate in the marvelous resort town of St. Moritz, Gstaad and Interlaken. These are also popular in summer for activities like swimming, boating, hiking, and mountain climbing. Switzerland is famous not just for its mountain and lakes. Have you tasted our rich and classy chocolates? Our chocolates and varieties of cheese are famous around the world. Switzerland is also known for its beautiful watches. I am sending you some pictures of Switzerland and hope that you will be able to visit my beautiful country soon. Take care and all the best. Your friend Gabriel. स्टोरी को रीड करने के दौरान आपको पता चल गया होगा कि ये एक लेटर फॉर्म में लिखा हुआ एक चिट्ठी है जिसमें एक फ्रेंड जिसका नाम गैब्रियल है और वो स्विट्ज़रलैंड में रहता है, वो भारत में रहने वाले अजय को स्विट्ज़रलैंड के बारे में जानकारी दे रहा है। तो लेटर के रूल के हिसाब से सबसे पहले उसके किस दिन उसने लिखा और कैसा कौन से जगह से वो लिखा वो जानकारी ऊपर है, और उसके बाद वो अजय को लेटर के थ्रू ही स्विट्ज़रलैंड की जानकारी दे रहा है। अब लेटर को अगर हम साइड में रखकर ये सोचें कि स्टोरी में है क्या, तो जानकारी हमको मिलेगी ये स्विट्ज़रलैंड के बारे में बताया गया एक लेटर है जिसमें गैब्रियल बताता है कि वो
नेशनल जूनियर टेनिस चैंपियन खेलने के कारण वो काफ़ी दिन बिजी था और काफ़ी दिनों से उसने अपने दोस्त को लेटर नहीं लिखा था। हालांकि पिछले लेटर से उसे पता था कि स्विट्ज़रलैंड के बारे में उसे जानकारी देनी थी। वो यहाँ से वो शुरू करता है कि वो बताते चलता है कि टेनिस वहाँ का सबसे पॉपुलर स्पोर्ट है। उसके साथ ही सॉकर यानी जिसको हम फुटबॉल कहते हैं वो, और हॉकी भी वहाँ का फेमस गेम है। स्विट्ज़रलैंड में वो जन्म लिया है क्योंकि वो सबसे दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल कंट्री है। सारे लोग, दुनिया भर के लोग वहाँ घूमने जाते हैं। घूमने के लिए वहाँ स्नो कैप्ड माउंटेन यानी बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ों की चोटियाँ हैं, ब्लू लेक्स है, ग्रीन हरे मैदान है और लंबे लंबे पेड़ है जो माउंटेन स्लोप्स के आसपास है, जो देखने में एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा बनाता है। स्विट्ज़रलैंड यूरोप के बीच में है और उसके आसपास और दूसरे कंट्रीज़ जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली और फ्रांस है। वहाँ के रहने वाले लोगों को स्विस पीपल कहा जाता है और वहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज जर्मन, इटालियन, फ्रेंच, रोमांस है। बर्न वहाँ का कैपिटल है। स्विट्ज़रलैंड का आधे से ज़्यादा जगह सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ है, जिसे रेंज कहा जाता है, माउंटेन रेंज, और उस माउंटेन रेंज में आल्प्स नाम का माउंटेन रेंज है। इसके अलावा एक और माउंटेन रेंज है जिसे जूरा माउंटेन्स कहा जाता है। इन माउंटेन्स के स्लोप पे लोग नहीं रहते क्योंकि इन माउंटेन के स्लोप पे बर्फ़ और आइस एंड स्नो जमा हुआ रहता है, बल्कि दो माउंटेन पिक के बीच का जो खाली प्लेटू रीजन होता है वहाँ पे लोग रहा करते हैं। वहाँ लोग बहुत कम होते हैं लेकिन इन्हीं प्लेटू रीजन में वो रहा करते हैं। स्विट्ज़रलैंड में शुरू से ही बहुत सारे माउंटेन हैं, तो फिर वहाँ के लोग आने जाने के लिए टनल्स और ब्रिजेस का इस्तेमाल करते हैं जो पहाड़ों के बीच से होते हुए जाते हैं। ऐसा ही एक दुनिया का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट रेलवे टनल है गोटाहार्ड बेस टनल। बहुत सारे ऐसे पिक्चर्स पोस्ट कार्ड में स्विट्ज़रलैंड के बारे में देखा जाता है जहाँ सिर्फ और सिर्फ पिक्चर्स में होते हैं बर्फ़ से ढका हुआ पहाड़ी चोटी, लोगों का स्की करता हुआ, स्केटिंग करते हुए लोग, क्योंकि ये सारे जगह, ये स्विट्ज़रलैंड के ये पहाड़ सालों भर बर्फ़ और स्नो से भरे हुए होते हैं। स्विट्ज़रलैंड सिर्फ और सिर्फ इन पहाड़ों के नज़ारों से नहीं फेमस है, बल्कि यहाँ बहुत सारे रिसोर्ट टाउन भी है जहाँ से लोग आकर वहाँ रहते हैं। समर एक्टिविटीज़ में वहाँ के लोग स्विमिंग, बोटिंग, हाइकिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग इतने आदि करते हैं। इस वजह से वहाँ टूरिस्ट इंडस्ट्री भी काफ़ी फैला हुआ है। स्विट्ज़रलैंड सिर्फ माउंटेन्स के लिए और लेक के लिए फेमस नहीं है, वहाँ का चॉकलेट्स भी बहुत फेमस है। वहाँ के चॉकलेट की वैराइटीज़, चीज़ पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में लोग पसंद करते हैं, उनकी बिक्री बहुत होती है। इसके अलावा स्विट्ज़रलैंड में घड़ियाँ, ब्यूटीफुल घड़ियों के लिए वो जाना जाता है क्योंकि वहाँ बहुत सुंदर सुंदर घड़ियाँ बनाई जाती हैं। ऐसी ही कुछ फ़ोटो वो गैब्रियल अजय को भेज रहा है। ये जानकारी देते हुए वो बता रहा है कि मुझे आशा है बहुत जल्दी तुम भी मेरे कंट्री को घूमने आओगे। टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट, योर फ्रेंड गैब्रियल। ये गैब्रियल ने अजय को पूरे स्विट्ज़रलैंड की जानकारी पेन डाउन करके यानी लिख कर दिया है। यहाँ एक वर्ड आया था पेन फ्रेंड। पेन फ्रेंड उस फ्रेंड को कहा जाता है जो आपस में कभी नहीं मिलते लेकिन लेटर्स के थ्रू ही वो अपनी दोस्ती बनाए रखते हैं। वो एक दूसरे के बहुत भली भांति जानते हैं, अपने थॉट्स, इंफॉर्मेशन, सारी चीज़ें वे वैसे ही शेयर करते हैं। यहाँ भी ऐसा ही हुआ है और मुझे लगता है इस लेटर को पढ़कर हम आप भी स्विट्ज़रलैंड के बारे में बहुत सी चीज़ें जान गए हैं। तो जो जो चीज़ें यहाँ की इम्पोर्टेंट है उन चीज़ों को सोचो, फाइंड करो। और ये क्वेश्चन टाइम का क्वेश्चन नंबर 1, गैब्रियल्स लेटर टेल्स यू अ लॉट अबाउट स्विट्ज़रलैंड, फिल इन द बॉक्सेस टू कंप्लीट द इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिली है उसको लेकर यहाँ आप भर सकते हैं कि वहाँ की सीनिक ब्यूटी क्या चीज़ का है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन से हैं, स्पोर्ट्स कौन कौन सा है, माउंटेन्स कौन कौन से हैं और बेस्ट किस चीज़ के लिए स्विट्ज़रलैंड जाना जाता है। यहाँ तो आप वर्ड में लिखेंगे बट इन लिंक टू इन द वर्कशीट उसमें आपको दिया गया है कि आप इस स्टोरी को पढ़ने के बाद
स्विट्ज़रलैंड के बारे में जो भी पॉइंट्स आपने जाना उसको जॉट डाउन करेंगे और फिर उसे एक पैराग्राफ की तरह बनाएंगे। यहाँ स्विट्ज़रलैंड की जानकारी चिट्ठी की तरह दिया गया है, वहाँ आप एक पैराग्राफ की तरह बनाएंगे। स्विट्ज़रलैंड क्या है, उसके कैपिटल कौन से हैं, उसकी लैंग्वेजेस कौन से, ऐसे करके पूरा पैराग्राफ बनाएंगे जो एक छोटा सा ऐसे टाइप बन जाएगा। आज तक के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड डे।